Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हो तुम लोग सभी? ठीक हो? Yes, Yes, sir. sir. Last class we discussed about the transmission, the reflected electromagnetic wave, right, and their absorptions by the atmosphere. Okay, तो याद है जो all band, जो all spectrum जो है cannot transmit it through atmosphere. Some portion absorbed by the atmosphere due to uh, due to the जो different gases जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, O3s, राइट? ठीक है, जो ऑलरेडी क्लास प्रैक्टिकल क्लास में किया था ना, ड्राइंग स्केच किया था ना? Sir, wave spectrum. नो नो नो, जो इन जो टारगेट टू सेंसर में जो रिफ्लेक्टेड Yes, हो रहा sir. है, Yes, sir. इन सम पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द एटमॉस्फेयर, Yes, sir. है ना? Yes, sir. जो व्हाट्सएप में सेंड किया देखो अभी, तो ये डायग्राम का, ये फिगर्स का इंपॉर्टेंस किया है रिमोट सेंसिंग में, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स इन रिमोट सेंसिंग में, बिकॉज ऑल स्पेक्ट्रा जैसे फार इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड में तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। और भी बेटर इमेज सेंड करो, देखो अनदर इमेज, रिसीव्ड। Yes, sir. देखो इसमें एंटर स्पेक्ट्रा, या श्योर एंटर स्पेक्ट्रा में, राइट, विजिबल स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन कितना परसेंटेज है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव माइन्यूटली ऑब्जर्व्ड। देखो सबसे मैक्सिमम माने मैक्सिमम लेस एब्जॉर्प्शन इज विजिबल स्पेक्ट्रा ना, माने एंटायर स्पेक्ट्रा से स्मॉल पोर्शन इज ट्रांसमिटेड, मेजर ट्रांसमिशन हो रहा है। इट्स मीन वी कॉल इट एज ए विंडो, विंडो ना, घर में एक वॉल में एक घर में एक विंडो का मतलब वो स्मॉल पोर्शन में लाइट ट्रांसमिशन हो रहा है। सिमिलरली एनालॉजी करो तो एंटर स्पेक्ट्रा में स्मॉल 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 पोर्शन में लाइट जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है टू सेंसर, टारगेट टू सेंसर तक। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडोज, एटमॉस्फेरिक विंडोज। ओके, तो एटमॉस्फेरिक विंडो इज बेसिकली the atmosphere cannot the completely transmit to the electromagnetic radiation because of the gases, different gases constitute in the atmosphere, right, and together form a important barrier. These are the important barrier for transmission of the electromagnetic radiation through the atmosphere, right? But
see only some selective transmission. Selective transmission, say for example, visible spectra, selective transmission of certain wavelength. Now, the certain wavelength, those wavelength that are relatively easily transmitted through the atmosphere, or we can are referred as a atmospheric window. The definitions क्या है? Atmospheric window, the atmosphere selectively transmit energy of certain wavelengths. Atmosphere selectively transmit energy of certain wavelength, those wavelength that are those transmitted through the atmosphere are referred to, okay, right? Now see, oxygens of visible spectrum 0.4 to 0.7 micrometers is transmitted, right? But say UV, sorry, X-ray, beyond below UV, the major portion absorbed by the oxygens, right? UV also good. UV also good to window. UV, then visual spectra, then near infrared. Infrared two types, na? Three types, three divisions. One is called near infrared, mid infrared, and far infrared, right? So far infrared is basically thermal, produced temperatures, okay? And near infrared and mid infrared, we call it reflective infrared. That is range from 0.7 to 3 micrometer. And far infrared is 3 to 14. That is also called thermal infrared. Okay. Beyond the thermal infrared, the carbon dioxide majorly absorbing, right? And these the certain range of wavelength easily transmitted, that portion is called atmospheric window. Understood everyone? Yes, sir. ओके, तो इम्पोर्टेंट यही है जो द विजिबल रे जहाँ पे इजीली ट्रांसमिशन होगा, दैट स्पेक्ट्रम, दैट विंडो वी यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ए सेंसर फॉर रिमोट सेंसिंग ना. इन विंडो पता होगा, अकॉर्डिंगली विल डिजाइन आवर सेंसर. ठीक है, तुम सेंसर ऐसे डिवाइस किया है जहाँ पे फार इंफ्रारेड के लिए, तो फार इंफ्रारेड तो एटमोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिसीविंग नहीं होगा. हाँ? तो फार इंफ्रारेड के लिए सेंसर अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है, कितना परसेंटेज हम लोग रिसीविंग होगा वही पर्टिकुलर बहुत लेस है फॉर इंफ्रारेड, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली एब्जॉर्बिंग. ओके, ठीक है. तो मिड सेम में टिल डेट तक सिलेबस है मिड सेम का. ओके, Okay, sir. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक. तो हम लोग क्या सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट तो सम इंट्रोडक्शन रिमोट सेंसिंग बेसिक प्रिंसिपल, देन डिस्कस किया था डिफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन सोर्सेस, देन रिमोट सेंसिंग satellite orbits, right? Then radiation interaction with the atmosphere, radiation's laws, right? Spectra, range of spectra, application of remote sensing, sources of electromagnetic radiations, right? Various steps in remote sensing. Okay, and lastly, atmospheric
इंटरेक्शन जो है, द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, राइट. देन लास्टली टू डिस्कस किया है, that is atmospheric window. This is a syllabus for mid-sem. Okay. Sir, up to Next topic. atmospheric window. हाँ, up to atmospheric window. अच्छा, next topics लिखो, note करो. That is spectral signature used in remote sensing. Very, very important topic. Spectral signature used in remote sensing. Spectral signatures. ठीक है, ये है बेसिकली एक्चुअल रिमोट सेंसिंग. एक्चुअल रिमोट सेंसिंग. ओके, तो we have to understand the spectral, what does it mean by spectral signatures. Okay, तो देखो रिमोट सेंसिंग एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मीनिंग क्या है? मीनिंग, सो सपोज करो चंडीगढ़ में 50 सेक्टर्स है, तो कितने एरिया मैंगो ट्री, बाय नंबर ऑफ मैंगो ट्री को हम लोग कैलकुलेट करना है यूजिंग, एस्टिमेट करना है यूजिंग रिमोट सेंसिंग, राइट. तो कोई इमेज लिया है, image से you cannot interpret the actual number of mango tree, right. For that purpose, तो एक कोई सेक्टर में कोई पोर्शन में मैंगो ट्री है, राइट. मैंगो ट्री है, तो ग्राउंड का कौन सा पोर्शन का जो मैंगो एक्चुअल मैंगो ट्री है, एंड एंटायर चंडीगढ़ का रिमोट सेंसिंग इमेज लिया है. नाउ ग्राउंड का जो मैंगो एक्चुअल मैंगो ट्री का जो एरिया है, उस जगह का रिफ्लेक्टेंस एंड कैप्चर्ड इमर्सिंग ऑफ द एंटायर एरिया, राइट. दोनों को हम लोग स्टडी करना है. दैट्स मीन स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्राउंड एंड एंटायर अदर पोर्शंस ऑफ स्पेक्ट्रल एनालिसिस, राइट. तो तुम्हारा स्मॉल पोर्शन ग्राउंड प्लस स्पेक्ट्रल एनालिसिस एंड अदर पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रल एनालिसिस. तो दो स्टडी करना पड़ेगा. तुम इनको ब्लाइंडली एकदम कर नहीं सकता, बिकॉज योर इंटरप्रिटेशन विल बी रॉन्ग. अंडरस्टूड? इट मीन्स तुम्हारा साइट टेस्टिंग करना है, एटलीस्ट स्मॉल पोर्शन को साइट टेस्टिंग करना है पड़ेगा. ओके, so ground investigation with respect to remote sensing involve two kind of observation depending upon the objective to be achieved, right. So ground site inspection is required for accurate interpretation, right. So जो small portion ground testing किया है through, तो accordingly जो उसको जो reflectance मिला है, same reflectance other portion में कितने area covered है, then we can calculate the accuracy. Otherwise तुम total on the basis of reflectance, it would be wrong. Reasons क्या है? That is number of reasons, we will discuss later on. Okay, so two things we have to keep in our mind. One is the visual and spectral measurement, right. Visual and spectral measurement, visual measurement and spectral measurement, right. तो विजुअल ऑब्जर्वेशन जो है, जो ग्राउंड टेस्टिंग किया है, ऑब्जर्वेशन है, दैट शुड बी कलर शेप. मैंगो ट्री का जैसे कलर क्या है, लिप्स का शेप क्या है, टेक्सचर क्या है, टेम्परेचर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट. दिस इज द ग्राउंड इंस्पेक्शन बाय ग्राउंड मेजरमेंट. फॉर द स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ओनली spectral reflectance, particularly in situ reflectance. Understood? Sir, repeat कर दो. देखो मैं बताया ना, जो कोई स्टडी तुम्हारा टारगेट है, तो एक रिमोट एरिया को टारगेट जो है, इनएक्सेसिबल एरिया से तुम इंटरप्रेट करना है. रिमोट सेंसिंग यही ऑब्जर्वेशन है ना, टारगेट है. बट रिमोट एरिया इट्स ओके फाइन, बट रिमोट एरिया एटलीस्ट स्मॉल पोर्शन, वेरी स्मॉल पोर्शन को ग्राउंड प्लस स्पेक्ट्रल दोनों कंपैरिजन स्टडी होके, कंबाइंड स्टडी होने के बाद तुम अदर पोर्शन, रेस्ट पोर्शन यू कैन interpret. That is the actual study. Otherwise तुम रूम ऑफिस लेबोरेटरी में बैठ के तुम इंटरप्रेट कर रहा, that is wrong हो जाएगा. Because
right? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. तो विजुअल एंड स्पेक्ट्रल मेजरमेंट एनालिसिस चाहिए। तो विजुअल पोर्शन जो हो तुम स्टडी एरिया, जैसे एग्जांपल दिया हुआ चंडीगढ़ का 50 सेक्टर स्टडी एरिया। स्टडी पर्पस क्या है? मैंगो ट्री को कैलकुलेट करना, बाय एरिया कवर कैलकुलेट करना है, राइट? तो स्मॉल पोर्शन, एक सेक्टर को स्मॉल पोर्शन से मैंगो ट्री ग्राउंड रिलेटिव क्या है, ग्राउंड ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड रिफ्लेक्टेंस जो स्पेक्ट्रल, दैट पोर्शन का स्पेक्ट्रल एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों कंबाइंड होके देन यू कैन कंक्लूडेड जो सेम रिफ्लेक्टेंस जो जो ग्राउंड में टेस्ट किया है, सेम रिफ्लेक्टेंस जो अदर पोर्शन में किया है, यू कैन एक्यूरेटली कैलकुलेट। एक एग्जांपल दिया मैंने जो, राइट नाउ ग्राउंड और विजुअल मेजरमेंट एंड स्पेक्ट्रल मेजरमेंट। Visual measurement means ground testing, ground measurement, and spectral measurement. The ground measurement में क्या क्या parameters कौन है? Involving सर parameter. एक्सक्यूज मी Yes. सर, ये जो हम विजुअल और स्पेक्ट्रल दोनों कर रहे हैं छोटे से एरिया के लिए, सर ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? Yes. Yes. Exact information के लिए. Exact information के लिए, right? Right. क्यों क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? Suppose देखो मैंगो से अदर ट्री का कलर भी ग्रीन ही है ना, राइट? यस सर। तो the same reflectance स्पेक्ट्रल से तो डिस्टिंग्विश करना भी डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल स्पेक्ट्रल में कुछ सम वेरिएशंस आएगा। हाँ, वेरिएशंस क्यों आएगा? बिकॉज जो क्लोरोफिल पैटर्न, वाटर मॉइस्चर कंटेंट पैटर्न, द स्ट्रक्चर क्या है लीफ का, बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो ग्राउंड टेस्टिंग इज मच नीडेड, राइट? तो ग्राउंड टेस्टिंग में ऑब्जर्वेशन क्या करेगा? एक तो रहेगा कलर्स क्या है, एक्चुअल कलर, शेप क्या है, साइज क्या है, टेक्सचर क्या है, also temperatures. So these are the ground observations, right? And spectral observations में क्या है? Reflectance. Primary reflectance, that also the in situ, the actual reflectance. Understood? So two investigations is required for the actual interpretation, right? Now, what is the signature? Spectral signature के meaning क्या है? The any remotely sensed parameter which directly or indirectly characterize the nature or condition of the object under observation is defined as a signature, spectral signature. सर Understood? रिपीट कर दो। Any remotely sensed parameters which directly indirectly characterize the nature and condition of the object under observation defined as a signature. Okay, and we actually use the spectral signature of the object in remote sensing. ये spectral signature जो है characteristics है, that is the remote sensing object in the remote sensing, right? And these can be the defined as a unique pattern. This is the unique patterns of wavelength radiated by the object. This is an indigenous property, intrinsic property. Okay, understood? ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इट्स मींस वन ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेंस है, डिफरेंस है, एंड डिफरेंस क्यों है? दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज द की ऑफ रिमोट सेंसिंग। मैं पहले भी बताया था की ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है? जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फॉर्मेशन टू फॉर्मेशन वेरी करेगा, सैंड क्ले के लिए डिफरेंट है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेंस भी क्लोरोफिल के लिए एक होगा, वाटर के लिए रिफ्लेक्टेंस डिफरेंट होगा। समझ में आया? तो दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक पैटर्न ऑफ वेवलेंथ रेडिएटेड बाय ए ऑब्जेक्ट।
right? तो जो spectral signature, there is a 4 type of variations categorized, right? Note करो 4 types: spectral variation, spatial variation, temporal variation, and polarization variation. Spectral variations, spatial variations, temporal variations, and polarization variations. Spectral variation is basically variation in reflectivity and emissivity. Reflectivity and emissivity as a function of wavelength. It is a function of wavelength. Okay. Sorry, can you repeat this? Spectral variation due to the is in reflectivity and emissivity. Reflectivity and emissivity as a function of wavelength, right? Secondly, spatial variation. This variation of reflectivity and emissivity with a spatial position. ये जो spectral variations होगा due to only for wavelength. Now spatial variation होगा due to its positions. Positions means spatial position mean its shape क्या है, its texture क्या है, its size क्या है. Okay. It also depends on your reflectance signature. Also depends on the shape, texture, and size of the object. Temporal variations क्या है? Temporal variations, variation of emissivity and reflectivity like that the diurnal or seasonal cycle, seasonal variation, seasonal cycle. Understood? The emissivity and reflectivity of the object depends on the diurnal or seasonal cycle. स्प्रिंग में जो वाटर स्प्रिंग में सपोज न्यू लीफ का कलर एंड मैच्योर्ड लीफ का कलर डिफरेंस है ना, एक ही ऑब्जेक्ट तो सेम है बट उसको कलर डिफरेंस हो रहा है ड्यू टू सीजनल टेम्पोरल वेरिएशन एंड टेम्पोरल वेरिएशन ड्यू टू द सीजनल चेंज, right? And lastly, polarization variation are introduced by the materials. Polarization variation are introduced by the materials in the radiation reflected or emitted by it. Sir, repeat, please. Polarization variation please. are introduced by the material, introduced by the materials in the radiation reflected or emitted it. सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ? सर आप इसको टाइप करके दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे ताकि थोड़ा आगे लग जाए सही से. ठीक है, I will send my next में end of this lecture I will send the some materials, study materials. Okay. यस सर, थैंक यू. अभी नोट करो, ये आज टुडे विल डिस्कस जो है बेसिकली वेजिटेशन, वाटर एंड सॉइल, तीनों का जो 3 ऑब्जेक्ट है, 3 टारगेट है, मटेरियल्स है, उनको रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स क्या है, हाउ टू वेरीज. तो टुडे ओनली डिस्कस ओनली वेजिटेशंस. ओके, तो एंड ऑफ द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के बाद आई विल सेंड द सम मटेरियल्स. ओके, तो 4 टाइप ऑफ spectral signatures, variation of spectral signatures. I repeat, spectral variations, spectral signature, 4 types by categories. We can say the spectral variations due to function of wavelength, spatial variation due to spatial position of the target, and temporal variation due to seasonal or diurnal cycles. Or polarization variation is basically material radiations effect, reflected or emitted it. Okay.
सी व्हाट्सएप में एक सेंड किया है पिक्चर, देखो ग्रीन रेड इंफ्रारेड 3 स्पेक्ट्रा इंसिडेंट हुआ है अर्बन एरिया में, राइट? गॉट इट? मिला है? Yes, sir. ये 47 53 53 व्हाट डज इट? Percentage absorbed. परसेंटेज ऑफ, नो, रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस क्या मीनिंग है? सपोज तुम इंसिडेंट है 100, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। वेल, am I audible? Am I Yes. audible? Okay. Now see, 100% इंसिडेंट हुआ है, इमिटेड हुआ ऑन टारगेट में, अर्बन एरिया में। तो आउट ऑफ दैट एक स्पेक्ट्रा, रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा, रेड, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड, राइट? नाउ मैं ऑब्जर्वेशन, एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन छोड़ ही दे रहा हूँ। बाकी आउट ऑफ दैट जो 47%, 53%, 53%, 47% ग्रीन, 53% रेड एंड 53% इंफ्रारेड received by sensor. ओके, तो ये 47% ग्रीन, 53% रेड एंड 53% इंफ्रारेड, ये बेसिकली intrinsic property of target, right? It means target to target, object to object variations होगा। जैसे नेक्स्ट डायग्राम में देखो, रेसिडेंशियल एरिया में ग्रीन इज 37%, red is 36%, and infrared is 29%. Right? Few more pictures. रिवर में 35% ग्रीन, रेड इज 38%, infrared is 25%, राइट? बट ये ब्लू नहीं है, ब्लू होगा तो मोर देन 50%, राइट? लेक में देखो सेम, रेड इज 23%, 18% इज रेड, blue, green is 23%, and 12% is infrared. फॉरेस्ट एरिया में देखो, infrared is 74%, 19% is red, 24% is green, right? सर फॉरेस्ट में ग्रीन ज्यादा नहीं होना चाहिए? ग्रीन एक फॉरेस्ट इज एग्जांपल दिया है, फॉरेस्ट में टाइप ऑफ ग्रीन कौन सा ग्रीन है, ये थोड़ा डिपेंड करेगा। ग्रीन होना चाहिए था, बट फॉरेस्ट में एक एग्जांपल दिया है, जस्ट दिस इज नॉट आइडियल, जस्ट ये दिया है बेसिकली। तुम इंफ्रारेड है जो कॉनिफरस ट्री होगा ना, जो टेम्परेट जोन में जो ट्री है, राइट?
that reflected infrared is more than green. We'll discuss. हाँ. फर्स्ट सर में एक करेक्शन हो 81%, 151 नहीं है 81%. This means A जो है basically it the three spectra is receiving by reflectance receiving by sensor, and this receiving due to only for interactions, and it is varies from object to object. That is the main मैंने ए इंटरप्रेट करना ए बोलना चाह रहे हैं इमेज से, राइट. See, which band are the most useful for distinguish between this class? Which band are more useful? Tell me. Forest area, infrared, water. What is blue? देखो 23% is reflectance, right? Forest area, greener से near infrared is more, right? कॉर्न में देखो infrared again, right? pasture में देखो again infrared, right? तुमने जिसमें जहाँ reflectance higher है, that is the characteristics, right? Distinguished characteristics, features. Understood? तो हम लोग एज ए रिमोट सेंसिंग जियोलॉजिस्ट, तो रिफ्लेक्टेंस जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेंस क्या है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट. देखो सेम एग्जांपल देखो, वाटर में देखो यूवी है 22, ब्लू है 23, दोनों का रिफ्लेक्टेंस मोर और लेस सेम, राइट. ग्रीन आल्सो 19% रिफ्लेक्टेंस शो हो रहा है, राइट. फॉरेस्ट एरिया इंफ्रारेड देखो कितना हाई फॉरेस्ट में है, पास्चर में देखो थोड़े और भी हायर है इंफ्रारेड, राइट.